Students, I Pawan Sharma, teacher of chemistry from Rishikul Vidyapith, coming with the third module of structure of atom. Two model I have already discussed. Today I will discuss another concept of filling of electron, that is Hund's rule of maximum multiplicity. Students, in second lecture, I discussed very important rule, that was above principle, and according to that there was various orbitals which are arranged as per increasing energy, and energy of orbital was decided by n plus l rule. और मैंने आपको उनकी एनर्जी का जो ऑर्डर है एक ट्रिक से भी सिखाया था, और वो ट्रिक आप स्कूल पब्लिक स्कूल लाइक दैट. हाँ, इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने सेकंड लेक्चर को जरूर से देखना है, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आए. कीप इन माइंड. देखिए, दिस इज increasing order of energy of various orbitals, or you can say subcells. And I would like to remind something. In a subcell there is one orbital, and in one orbital how many electrons are possible? Maximum 2 electrons. Here I am writing subcell, just I am reminding you. Here I am writing orbital, here I am writing electrons. S subcell, 1 orbital, electrons are 2. In P subcell, orbitals are 3. And how many electrons? In 1 orbital, 2. That is why 6 electrons. Like this. In D subcell, how many orbitals? 5 orbitals there. And in 1 orbital, 2 electrons. Total are 5. That is why 10 electrons are there. And in F subcell there are 7 orbitals, and each orbital have 2 electrons. That is why there are 14 electrons. Students, you must remember these things. S के अंदर 1 ऑर्बिटल, P के अंदर 3 ऑर्बिटल, D के अंदर 5 ऑर्बिटल, F के अंदर 7 ऑर्बिटल, और S के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 2, P के अंदर मैक्सिमम 6, D के अंदर 10 एंड F के अंदर 14. अब मैं आपको हुड्स रूल डेड ना बता के आपको एग्जांपल के साथ टाइमली आई विल एक्सप्लेन इट फॉर फिल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. वी हैव डिस्कस्ड 2 रूल्स. One was F-bow rule, second was Pauli exclusion principle. According to that, in orbital there are maximum 2 electrons with opposite spin. ये सब मैंने आपको रिवाइज करवाया है. क्या है रिवाइज. अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं स्टार्ट करता हूं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स वी आर टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सबसेल को या ऑर्बिटल को, in various orbitals as per rules. Distribution of electrons in various orbitals as per rules. उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. अभी तक आपको 2 रूल्स के बारे में अच्छी नॉलेज है. अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं, और ये मैं होप करता हूं
कि अप टू 30 एटॉमिक नंबर, और यू कैन से अप टू 30 एटॉमिक नंबर्स, एटम्स के सिंबल्स और नेमिंग वगैरह आपको अच्छे से आती होगी। लेट्स स्टार्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, you know this side, here we write Z, here we write A. Z means atomic number, A means atomic mass. और this atomic number means क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई एटम है जो एटॉमिक नंबर होगा, उतने ही उसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वेरी सिंपल थिंग। That is why here I write like this. It means it has atomic number 1, or you can say it has 1 electron. अब we are to fill the electrons. कैसे? रूल को we are to follow. अब देखिए, above principle के according we are to fill electrons first in 1s orbital because it has lowest in energy. So we can fill like this 1s, and here I write 1. This means this cell, first cell, this s orbital, or you can say subcell, and this 1 is electron. वैसे s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल हैं? 2, but we are having only 1 electrons, that is why we fill 1 electrons. और this thing also can be written like this. और कैसे लिखते हैं? ऑर्बिटल को ऐसे प्रिपेयर कर लें और ये 1s और ये 1s, एक इलेक्ट्रॉन होगा। आप इसको यूं भी दिखा सकते हैं और डाउनवर्ड भी दिखा सकते हैं, नो मैटर। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए लिया? हाइड्रोजन के लिए। नाउ नेक्स्ट में आइए अब हीलियम। सी हीलियम, हियर इलेक्ट्रॉन्स आर 2। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस 1s 2 because we are having 2 electrons. Or simply you can write like this, no matter, there are 2 electrons, and here देखो, अब above principle we have used, first electron goes to lowest energy orbital. अब now here this is 1s, अब here 2 electrons will be with an opposite spin, that is Pauli exclusion principle. One is clockwise, other is anti-clockwise. I think it is clear to you. Now, next come to lithium. Atomic number is 3. Let's start. देखिए अब 1s2. अब कहीं के माइंड में आता है सर 3 क्यों नहीं लिखे? 3 है because we know s orbital maximum electrons how much possible? 2. That is why we don't write here 3. अब देखो above principle, first we are to fill up the electrons with lowest energy. We have filled, complete filled. After that 1 electron is left, then we move to 2s like this, 1s2 and here 2s. अब आपके माइंड में आता है सब 2 क्यों नहीं लिखा? Because electrons are 3. 2 are here, 1 is left, that is in 2s. Or simply you can show like this. This is 1s, opposite spins, and here 2s, single electron, whether you write like this or you like this. This is electron configuration for lithium. Now come to next, barium. That is 4. That is 4. Now you can write, कैसे लिखेंगे? देखिए, लिखिए अब 1s2, then 2s2, 1s2, then 2s2. Also you can show like this, here 1s2, यहाँ क्या हो जाएगा? एक और आ जाएगा 2s2. I think no need to write. Now come to next, that is carbon. Atomic number is 6. Fill the electrons.
1s2 we have filled. Then move to where? 2s2. We can't write 3 because maximum electrons are 2 in s orbital. Right now how many electrons left? 2. Then move to 2p, 2 like this. Or also we can write like this. Here 1s, here this 2s, 1s 2 electrons there, in 2s 2 electrons there, and in 2p, you know, in 2p subset there are 3 orbitals. अब यहां देखिए, we are having 2 electrons in p. अब what are the ways to fill in p? अब देखो एक तरीका तो मैं ये अडॉप्ट करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां लिख दिया और एक यहां लिख दिया, एक तो ये हो गया। अब 2p में अनदर मेथड देखिए, क्योंकि ऑर्बिटल आर 3 in p, one here like this, and also like this. You see here 1 2 3, 1 here, 1. Or also we can write like this, like this. These are the various way to fill electrons in p subset. One way is this one, second way is this one, third is this one, fourth one is this one. अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अब ये रूल क्या कहता है, अब इस p के अंदर, अब देखो 3 ऑर्बिटल्स है ना, 3 ऑर्बिटल्स, और ये 3 जो ऑर्बिटल्स हैं p के, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेट्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। एक टर्म यू कैन नोट डाउन स्टूडेंट्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है ये। क्या है ये? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब, अगर किसी सब सेल में एक से ज्यादा ऑर्बिटल होंगे, जैसे p में कितने होते हैं 3, d में कितने होते हैं 5, m में कितने होते हैं 7, तो तीनों p ऑर्बिटल्स हो, p सबसेल एनर्जी सेम होगी, d के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, f के 7 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। और ऐसे ऑर्बिटल्स को एक नाम देंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर जो फिलिंग है उसके वेरियस मेथड है। अब देखो लिसन, वैसे भी कॉमन सी बात है, अब तीनों की एनर्जी सेम है, अब आप क्या करोगे? एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 2 स्टूडेंट्स हैं सेम क्लास के, और एक बच्चे को मैं रसगुल्ले दे दूं सारे, तो दूसरे को बुरा नहीं लगेगा क्या? नेचुरल सी बात है। तो इक्वल एनर्जी के, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी तो चाहिए ना, तो इसलिए क्या किया? अब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। ये थोड़ा सा इसे बेटर है, क्योंकि यहां तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक को दे दिया। सी हियर 2 electrons, one here, one here. What is there? One is clockwise, other is anti-clockwise. Here both are same spin के साथ parallel spin. Here also parallel spin. Both are anti-clockwise. Here both are. तो इनमें से सबसे राइट ये है और ये है, दोनों एक बात है, चाहे आप दोनों को फिल करो, चाहे दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये राइट है। अब क्यों है ये राइट, थोड़ा सा समझिए। अब जब सेम स्पिन के साथ होंगे, पैरेलल स्पिन होगा, तो इनके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्या होती है? स्टेबिलिटी। यहां रिपल्शन कम होता है, और जब ये अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं तब इनके अंदर रिपल्शन ज्यादा होता है, तो स्टेबिलिटी क्या होती है? कम।
तो अब देखो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इसका मतलब जैसे हम मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो देखो अब इसके लिए क्या करेंगे, प्लस हाफ करेंगे बेटा, इसके लिए क्या करेंगे, माइनस हाफ करेंगे, तो दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। अब देखो यहां इसके लिए क्या करेंगे, प्लस हाफ, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, प्लस हाफ, दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, मल्टीप्लिसिटी। अब इधर देखो यहां क्या करोगे, माइनस हाफ, इसको प्लस हाफ भी देखते हैं पिछले लेक्चर में क्या, प्लस हाफ लिखो माइनस हाफ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसको क्या लिखो, प्लस हाफ या माइनस हाफ, को मैटर नहीं, ठीक है ना, एक है। तो यहां भी मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1। क्लियर है ना। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। कहने का मतलब क्या है, जब डीजनरेट ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग करेंगे ना, और डीजनरेट ऑर्बिटल कहां होंगे, पी में होंगे, डी में होंगे और एफ में होंगे। एस में तो नहीं होंगे क्योंकि एस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, उसका तो कोई मेथड ही नहीं होता, उसमें तो कैसे भरो, 2 ही तो पढ़ने हैं लाइक दिस, और कोई मेथड वे है ही नहीं। तो पी डी और एफ के अंदर डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, और उन ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देंगे सभी ऑर्बिटल्स को, उसके बाद बचेंगे तो क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे, पेयरिंग। और यही हमारा हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एक एग्जांपल के साथ देखिए, फिर मैं आपको स्टेटमेंट नोट करवाता हूं, देखिए। See, I am taking here nitrogen 7, right? तो फिल करें 1s2, then 2s2, then 2p। अब बोलो, देखो 7 है, 2, 2, 4, how much left, how many left, 3, so we put here 3, or also we can write here 1s, 2 electrons there, here 2s, 2 electrons there, and here 2p orbitals are 3 electrons कैसे फिल करेंगे, एज पर हून्स रूल। बेस्ट वे क्या है, अब देखो ये 1, अब मैं यही बोलूं तो दैट इज रॉन्ग वे। पहले क्या करेंगे, सिंगल सिंगल फिल करेंगे, सिंगल सिंगल, क्योंकि हम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आएगी ना, यहां हाफ यहां से आएगी, हाफ यहां से आएगी, हाफ यहां से, 1.5 आएगी ना। अगर मैं इसको ऐसे फिल करूं लाइक दिस, तो देखो हाफ इसकी माइनस हाफ, तो 0 यहां से आई, यहां से क्या है, सिर्फ प्लस हाफ। क्लियर है ना। आई थिंक क्यों हम ये रूल लगा गए, तो क्या है तरीका, 1 and 1। I think clear to you. Now come to next. See oxygen 8. How to fill? As per first term जाएंगे 1s, 2 जाएंगे maximum 2s, then 2s 2, then 2p, क्योंकि p में मैक्सिमम कितने आते हैं, 6, पर बचे कितने हैं, 4 तो आ चुके हैं ना। How many left, 4, so that is why we put here 4. Up another way, this 1s, this 2s, and this 2p. 1s में how many, 2, here 2. अब p में how many orbitals, 3 orbitals, total electrons are 4. What is the right way? सबसे पहले सिंगल सिंगल, ठीक है ना। अब सभी को एक एक दे दिया, अब मजबूरी है पेयरिंग करना, तो अब एक हो गया, चाहे यहां से स्टार्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहां से करो, किसी में पेयरिंग स्टार्ट होगी, अब पेयरिंग होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो पहले क्या है, सिंगल सिंगल दिए, क्योंकि सिंगल सिंगल ऐसे फिल करेंगे तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आती है ना। उसके बाद अगर बच जाए तो पेयरिंग करेंगे। अब यहां पेयरिंग की है ना, डबल किया, अदरवाइज क्या किया था पहले, सिंगल सिंगल। अरे यही क्या है, हून्स रूल। मतलब किसी भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर, डीजनरेट ऑर्बिटल पी में होंगे, डी में होंगे, एफ में, तो वहां पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक ईच ऑर्बिटल गेट सिंगल इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां सिंगल सिंगल
उसके बाद पेयरिंग हुई। तो यही क्या है, हुक्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। फर्स्ट यू आपको फील हो गया होगा व्हाट इज दिस, एंड यू राइट नाउ यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट ऑफ हुक्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो स्टेटमेंट क्या देखिए, स्टेटमेंट क्या है इस रूल की, ये रूल क्या कहता है, पेयरिंग इन, पेयरिंग समझता है, डबलिंग, पेयरिंग इन D P D and F subcell. Your orbital you can say same thing. Pairing in P D F subcell, क्योंकि P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, P subcell like this. Pairing P D F subcell doesn't take place until each orbital get single electron with parallel spin, single electron with parallel spin, with parallel spin, parallel spin। तो ये पैरेलल स्पीड है, सेम डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज सभी क्लॉकवाइज। दिस इज हुक्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। अब हमने 3 रूल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, और इन तीनों की हेल्प से हम कोई भी परफेक्ट तरीके से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वी कैन राइट। एफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुक्स रूल, सबका क्या है। एफ-बाउ प्रिंसिपल तो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, कि फीलिंग वेरियस ऑर्बिटल में कैसे होगी, पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, ये उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन क्या कहता है, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होंगे, विद अपोजिट स्पिन होंगे। और अब यहाँ पे हुक्स रूल की बात की, जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे, डीजेनरेट क्या होंगे, पी में होंगे, डी में होंगे और एफ में, वहां पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल विद पैरेलल स्पिन फील किया जाएगा, उसके बाद बचेंगे तो देयर विल बी ए pairing take place. This is all about these rule, and very much important or very much basic for 11th as well as 12th class. Practice it. You have to practice it. I take more examples of this. Iron के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आयरन Fe, that is 26। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, अब देखो यूज करते हैं, सबसे 26 इलेक्ट्रॉन थे। अब फिर करेंगे जैसे 1s, कितने बोलो, 2 ना, उसके बाद बोलो कहां जाएंगे, 2s2। अब बोलिए उसके बाद 2p, हाउ मच, हाउ मेनी, 6 ना, क्योंकि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6, 2p6 कितने हो गए, 10 ही हुए हैं। उसके बाद ये फिल हो गया कंप्लीट, उसके बाद वेयर इन 3s, हाउ मेनी, 2 ना, फिल हो गया। उसके बाद कहां जाएंगे, 3p के अंदर जाएंगे, p में कितने आते हैं, 6 आते हैं। उसके बाद कहां जाएंगे, 4s में, 4s में कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो हियर यू राइट 2। अब चेक करते हैं कि कितने हो चुके हैं, 4, 6, 10, 12, 18 और 2, 20। अब उसके बाद 4s के बाद कहां जाएंगे, 3d में कितने आते हैं, मैक्सिमम 10, पर बचे कितने, हाउ मेनी लेफ्ट, 6। तो दैट इज व्हाई वी राइट 6 हियर। अब आज के लिए आपने क्या करनी है, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा, सेकंड्स में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। अब डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे तो गलत रहेगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को सीख नहीं पाएंगे। तो आई एम गिविंग homework to you. You are write electronic configuration. Write electronic configuration of various species. Here I am writing. You are to write for. I am writing here chlorine. 17 इसके लिए आपने लिख के दिखाना, उसके बाद तो you are to write electron configuration of all this. I will check you. ठीक है, तो that is from today lecture. In next lecture I will tell you very attractive trick of
writing electronic configuration. Thank you from my side. Have a nice day.